nutritional content, and the immunity to disease in the plants. When we go to the field, we have the practice of talking to the crops. You must grow very well, without any disease. You must draw power, because this will be used to benefit many. In this way, we talk to the plants which grow very well, free from disease, and with very good results. We practice meditation at Amrit Vela in the early morning, and in the early evening we also come here and talk to the plants. We share the rays of the Father with these plants. Whilst giving these vibrations, we affirm, "You are very good, you are powerful, you are receiving the rays of the Supreme Father. The 5 elements of nature are supporting you. All illness is removed from the plants, which continue to become stronger. In this way, the plants receive extra vibrations." While working in the field, we do not allow ourselves to think anything negative or wasteful. If there is incidence of disease or pest in the crops, we prepare homemade pest repellents such as Dashpani Arc and Neem Arc and spray these over the crop as a tonic. Along with this, we meditate. We have found very good and practical results from this practice. Many other farmers are now doing the same. Whenever the plants become diseased, they can be cured through the vibrations with the protective shield of supreme power around the field. I have created awareness in farmers. One of them has started yogic farming, and gradually other farmers also got inspired. Now we have a farmers club with 21 farmers doing yogic farming. One time the sugarcane crop was damaged and people advised us to use urea, which are chemical fertilizers and pesticides. We did not use urea, but revived the crop through yoga power. The plants grew much taller and there was a good yield. We prepared the natural fertilizer whilst in meditation, which produced this result. We appeal to all our fellow farmers to stop using urea, as it is the cause of several diseases. We recommend that you participate in the practice of yogic farming and enable your children, your family and our nation to become healthy and prosperous. After 6 years of practicing yogic farming, I find a lot of change in myself. There is a big difference in my life. Will not take long the world to change. I am very happy that we are not producing toxic food for public consumption. The vegetables and other crops we provide are not toxic, but are filled with God's vibrations. Those who consume this food are filled with God's vibrations and will experience a sense of belonging. This is our good wish. It is my pure hope that all farmers, brothers and sisters, adopt yogic farming practice and thereby obtain very high yield. Thousands of farmers across India have already adopted the techniques of yogic farming. India is the land of farmers, and our economy is based on agricultural production. We would like to introduce the beautiful techniques of sustainable yogic agriculture to Indian farmers. We have the support of agricultural scientists, and we would like to share this message with fellow farmers so that they can get more returns with less expenditure and investment. In addition, there are many profitable aspects and benefits to be obtained at the level of having a healthy mind, body and society. With these objectives, the Sustainable Yogic Agriculture Program has been initiated. Research work is being carried out nationally and internationally, and farmers are reaping the benefits. Awareness campaign of sustainable yogic farming. A number of awareness campaigns and trainings have been conducted nationally and internationally so that the sustainable yogic farming methods can be offered to each individual. Till now, thousands of farmers have begun to apply these methods in their farming practice.
Under this campaign, in various parts of India, within various scientific agriculture institutes, a number of training programs have been initiated, such as Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, Dr. G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Indian Council of Agricultural Research, RCER, Patna, Indian Council of Agricultural Research, Research Complex, Goa, Navsari Agricultural University, Navsari, Assam Agricultural University, Jorhat, Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar, Dr. Punjab Rao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola, Rajendra Agricultural University, Samastipur, various universities, institutions and Krishi Vigyan Kendras located in different parts of India. Together with this, various events such as agricultural fairs, training camps, Kisan Mela, Sarpanch Sammelan, etc., wherein farmers were benefited through trainings in the methods of sustainable yogic agriculture. In our efforts to bring awareness of the Sustainable Yogic Agriculture Project to the international community, we have participated in the United Nations Climate Change Conference 2010, Mexico, United Nations Climate Change Conference 2011, Durban, South Africa, United Nations Conference on Sustainable Development 2011, Rio de Janeiro, United Nations Convention on Biodiversity 2012, Hyderabad, India, to underline its importance. There is a deep connection between the Supreme Being, nature, environment, and human beings. The Supreme Being is all-powerful. Through these unlimited powers of the Supreme, the elements of nature become pure and energized. Every particle of nature can be renewed. With regular practice of Raja Yoga meditation, we can purify the environment to the highest level. In this way, let us adopt this method and thereby protect the biodiversity of the entire world. Together, let us recognize the need of the hour and the call of the time, and enable each human being to have access to pure, sattvic and nutritious grain and food. In order to learn this incredible wisdom, farmers are invited to definitely contact their nearest center and study the course of Raj Yoga meditation. Free admission, enabling their life to become fortunate and blessed. Recognize your unlimited powers and enable the earth to once again become prosperous and flourishing. Om Shanti. मानव का अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि हम अपने पांचों तत्वों से प्राप्त संसाधनों की कितनी रक्षा करते हैं। कृषि में जैव विविधता, शुद्ध सात्विक अन्न एवं उत्तम खेती का आधार है। कृषि में जैव विविधता जितनी ज्यादा होगी, उतना पर्यावरण के साथ हमारा तालमेल अच्छा होगा। बीमारी, कीट नियंत्रण, भू संरक्षण, धरती की उर्वरता एवं फूलों फलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर हम नैसर्गिक संसाधनों का संवर्धन कर सकते हैं। इस आधुनिकता के दौर में प्रकृति मानव के क्रूर अत्याचार को सहन कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, भूखमरी, निकृष्ट बीज, बंजर बनती भूमि, बीमारियों की भयंकर त्रासदी, जहरीला अन्न, आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन? अंतर्मन के कोने से आवाज आई, हमें तो जिम्मेदार है। अच्छी सेहत के प्रति मनुष्य काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। धरती पर उपलब्ध सभी पदार्थ दूषित, दुखदायी व विषैले हो गए हैं। ऐसे में हम दीनहीन हो घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसकी गहराई में जाएं
तो पाएंगे कि वर्तमान समय जो अन्न हम खा रहे हैं वह जितना सात्विक, पौष्टिक और शक्तिशाली होना चाहिए वह उतना नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति से निपटने हेतु कुछ किसान भाई बहनों ने सोचा कि जहरीले कीटनाशक, जहरीले रसायनों द्वारा उपजे अन्न से भयंकर बीमारी की त्रासदी अनेक इंसानों को झेलनी पड़ रही है। संपूर्ण मानव जाति जहरीले अन्न का सेवन करने से बेचैन, अशांत और तनावग्रस्त हो गई है। हमारी धरती भी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि हम धरती मां को जहर पिलाएंगे एवं जहरीला अन्न दूसरों को खिलाएंगे तो हमें भी उसका दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने शुद्ध अन्न की पैदावारी का निश्चय किया। वे किसान ब्रह्मा कुमारीज में सिखाए जाने वाले राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते थे। उन्होंने परमात्मा की याद में रहकर सकारात्मक चिंतन एवं पवित्र भावना के साथ राजयोग का अनूठा प्रयोग अपनी खेती पर किया। साथ ही जैविक खाद का भी उपयोग किया, जिससे उन्हें अद्भुत परिणाम मिले। धीरे धीरे अन्य किसानों ने भी इसे अपनाया। आज यह कार्य ब्रह्मा कुमारीज का एक मिशन बन गया है, जो कि शाश्वत यौगिक खेती परियोजना के नाम से जाना जाता है। संकल्प शक्ति। संपूर्ण जगत क्वांटम थ्योरी के अनुसार आकर्षण के सिद्धांत एवं वाइब्रेशंस का खेल है। संकल्प शक्ति वह विशेष ऊर्जा है जो असंभव को भी संभव कर देती है। यदि हम चाहें तो मात्र संकल्प शक्ति से ही अच्छी फसल भी उगा सकते हैं। क्या आपको विश्वास नहीं होता? तो चलिए हम आपको ऐसे प्रयोगों से अवगत कराते हैं जो सदा के लिए आपकी विचारधारा ही बदल देंगे। यूरी गेलर ने मूली के बीज को हथेली पर रखकर मात्र संकल्प शक्ति से अंकुरित कर दिया, जबकि उसी बीज को खेती में अंकुरित करने के लिए कुछ दिनों का समय लगता है। उसी प्रकार जापान के वैज्ञानिक इमोटो मसारू ने संगीत, प्योर फीलिंग्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का पानी पर प्रयोग कर साबित किया कि हमारे एक एक वाइब्रेशंस और संकल्प के प्रति प्रकृति संवेदनशील है। इसी कड़ी में भारत के कई किसानों ने भी राजयोग मेडिटेशन द्वारा संकल्प शक्ति का प्रयोग अपनी खेती पर किया, जिसका परिणाम अतुलनीय था। राजयोग मेडिटेशन लगातार पॉजिटिव संकल्पों और प्योर फीलिंग्स में रमण करने की कला ही राजयोग मेडिटेशन कहलाती है। हमारी आत्मा सतोगुणी है। आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति के वाइब्रेशंस हम लगातार अपने प्रभामंडल से उत्सर्जित करते रहते हैं। परमात्मा इन 7 दिव्य गुणों के सागर है। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह परमात्मा प्राण ऊर्जा बह रही है। राजयोग अंतर जगत की एक ऐसी यात्रा है जिसमें परम स्रोत से मिलन की सुंदर अनुभूति होती है। जब हमारा मन परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाता है
तब परमात्मा से पॉजिटिव प्राण ऊर्जा का संचार आत्मा में होने लगता है। हमारा प्रभामंडल चार्ज हो जाता है। तब प्राण ऊर्जा धीरे धीरे सारे वायुमंडल में फैलने लगती है। जब हम उस परमात्मा सकाश को धरती पर फोकस करते हैं, धरती के सूक्ष्म अवयव चार्ज हो जाते हैं। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और धरती का शुद्धिकरण होने लगता है। यदि परमात्मा शक्ति को पानी पर फोकस करते हैं तो पानी के अणु चार्ज हो जाते हैं, पानी शुद्ध होने लगता है। यदि हम परमात्मा शक्ति को बीज पर फोकस करते हैं तो बीज अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है, बीज शक्तिशाली हो जाते हैं। और यदि हम परमात्मा शक्ति को पौधे पर फोकस करते हैं तो उसकी ग्रोथ और इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। शाश्वत यौगिक खेती। जमीन तैयार करना, हल चलाकर सूर्य के प्रकाश के लिए छोड़ दे ताकि हानिकारक कीट खत्म हो जाए और पुरानी फसलों की खरपतवार भी समाप्त हो जाए। बीज संस्कार। किसी भी प्रकार का बीज बोने से पहले बीज को परमात्मा सकाश से चार्ज करें। अनुभव करें कि उन बीजों में परमात्मा शक्ति भर रही है। महसूस करें कि परम पवित्र शक्ति से बीज प्राण ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं। सप्ताह भर तक उन बीजों को मेडिटेशन रूम में रखें। फिर उन बीजों को परमात्मा याद में जमीन में बोए। पौधों का पालन। बीज संस्कार करने के पश्चात जीवामृत व जैविक खाद जमीन में डालने से पहले हम अपने प्यारे परमपिता परमात्मा का आह्वान करें। फिर ऐसा अनुभव करें कि परमात्मा की शक्तिशाली प्राण ऊर्जा खाद को उर्वर बनाती जा रही है। फिर उस खाद को परमात्मा की याद में जमीन में डाल दे। अमृत वेला योग। प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक फसल को सकाश देते हुए महसूस करें, मैं एक चैतन्य दिव्य प्रकाशपुंज आत्मा हूं। परमात्मा मेरा पिता है, जिसे हम प्यार से बाबा कहते हैं। वह भी ज्योति बिंदु है। वह तेजोमय ज्ञान सूर्य है, प्राण ऊर्जा से भरपूर है। उनसे दिव्य किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा में समा रही है। मुझ आत्मा से बहुत ही शक्तिशाली किरणें निकलकर सारे वातावरण में फैल रही है। सभी तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सभी पावन बनते जा रहे हैं। खेती में नुकसान करने वाले कीटक, वायरस आदि प्राणी पवित्र शक्तिशाली वातावरण से निकलते जा रहे हैं। फसल अच्छी रीति बढ़ रही है।
अनाज पौष्टिक बन रहा है। ओम शांति। यह प्रयोग चाहे खेती में बैठकर करें, चाहे घर पर बैठकर अपनी खेती को मानस पटल पर इमर्ज करके करें। कर्म योग। दिन में खेतों में काम करते समय अच्छे विचारों का प्रवाह करें। मैं शांति का फरिश्ता हूं। शांति के वाइब्रेशंस संपूर्ण जगत में फैल रहे हैं। झंडा वंदन। अपने खेतों में परमात्मा झंडा अवश्य लहराए एवं अनुभव करें परमात्मा छत्र छाया हमारी खेती पर बरस रही है। परमात्मा का सुरक्षा कवच खेत के चारों ओर महसूस करें। शाश्वत यौगिक खेती के फायदे। कम खर्च, अधिक उत्पादन, पौष्टिक एवं स्वादिष्ट अन्न, पानी की बचत, धरती की उर्वरता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसानों के सफल प्रयोगों के इन तथ्यों के आधार पर अनेक कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रस्ताव रखे। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यह काफी रोचक और मूल्यवान रिसर्च होगी। तब सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों पर राजयोग के प्रयोग द्वारा फसलों में होने वाले परिवर्तन की जांच हेतु 5 वर्ष के लिए MOU किया। साथ ही साथ जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अमरावती, मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभणी, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट औरंगाबाद, डायरेक्टरेट ऑफ बीट रिसर्च करनाल ने भी शाश्वत यौगिक खेती के प्रति रिसर्च चल रहा है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। SDAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ MOU किया गया था। उसमें एक एक्सपेरिमेंट लिया गया है। वो एक्सपेरिमेंट है रोल ऑफ मेडिटेशन एलोंग विथ ऑर्गेनिक इनपुट्स ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्राउंडनट व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम। ये मल्टी डिसिप्लिनरी हम वर्क करते हैं। उसमें एग्रोनॉमी डिसिप्लिन, सॉइल साइंस डिसिप्लिन, एंटोमोलॉजी जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और जो बायोलॉजी और फिजियोलॉजी, वो सब मिलकर ये एक्सपेरिमेंट लेते हैं। जो खरीफ में मूंगफली लेते हैं और रबी में गेहूं का पाक लेते हैं। जो सीड है उसको हम बीके सेंटर है वहाँ बेचते हैं। वहाँ ये लोग 1 वीक और 10 दिन तक ये सीड को बाबा के मेडिटेशन हॉल में रखते हैं और वहाँ ये लोग मेडिटेशन का योग करते हैं और योग के प्रकम्पन देते हैं और 1 वीक के बाद जो सीड आते हैं उसकी हम बुआई करते हैं खेत में। ऑर्गेनिक मॉड्यूल और ऑर्गेनिक प्लस मेडिटेशन, उसमें FIM एक सरखा ही डालते हैं और उसमें मेडिटेशन करते हैं, उसमें मेडिटेशन नहीं करते हैं। दूसरा जीवामृत, हम जीवामृत बनाते हैं और जीवामृत वो सोइंग करने के बाद 20 डेज, 40 डेज एंड 60 डेज आफ्टर दोनों में ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्लस मेडिटेशन दोनों प्लॉट में हम वो जीवामृत डालते हैं। मूंगफली पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ज़्यादातर उसका जो है ऑयल कंटेंट बढ़ता है। ज़मीन में जो सूक्ष्म माइक्रोब्स है उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है और वैसे देखें तो पहली साल जो उत्पादन था उससे दूसरी साल और तीसरी साल में ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में यील्ड बढ़ा हुआ है और अभी वो उसका यील्ड है ऑर्गेनिक वाला जो मॉड्यूल है इससे भी अभी ज़्यादा है। तो मेडिटेशन का एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक उसका इफ़ेक्ट अच्छा दिखाई दिया। खास करके जो माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो सॉइल में जो माइक्रोबियल जो सूक्ष्म जीव है उसमें जो काउंट किया गया तो उसमें
और जो मेडिटेशन वाला प्लॉट में माइक्रोबियल एक्टिविटी जैसे कि राइजोबियम है, पीएसबी है, उसका जो काउंट है ये ऑर्गेनिक से उसमें ज़्यादा दिखाई दिया था। 3 वर्ष के अंदर काफ़ी सुंदर परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं। रासायनिक खाद से जो उत्पादन हो रहा है उसके समकक्ष अभी इस यौगिक और जैविक खाद के प्रयोग से जो हमने रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं वो भी सुंदर मिले हैं। जो हम 3 साल के रिजल्ट्स की बात करें तो गेहूं का क्रॉप जो है तो हमने फर्स्ट ईयर में लिया था, तो उसमें पहली साल में जो है उत्पादन जो है वो ऑर्गेनिक के बराबर ही था, लेकिन दूसरे साल में जो है तो प्रभाव से ऑर्गेनिक के हिसाब से जो वीट का यील्ड है वो ज़्यादा मिला था ऑर्गेनिक के हिसाब से, और तीसरे साल में तो वो केमिकल के एट पार हो गया है। तो हमें आशा है कि जो उसका यील्ड है तो हर साल बढ़ रहा है, तो उसका जो योग और मेडिटेशन का प्रभाव है तो दिख रहा है। तो उसके साथ साथ जो उसके क्वालिटी के पैरामीटर्स है, जैसे उसमें के ग्लूटेन कंटेंट है और वैसे उसमें जो सीड हार्डनेस है वो भी अच्छी हुई है, और उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी बढ़ा है, और उसके साथ साथ उसमें जो उत्पादन है वो भी बढ़ा है, और ज़मीन में जो है सॉइल माइक्रोब्स है तो उसकी संख्या में भी बहुत सारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तीसरा साल है, लास्ट ईयर का हम जो देखें तो जो मूंगफली का हम रिजल्ट बताए तो ऑर्गेनिक प्लस मेडिटेशन उसमें 9 टन